Hello, everyone, and welcome to the sixth episode of Meditalks. So, I'm very glad to have a faculty of pharmacology with us today. He's teaching to foreign medical graduates, he's teaching to NEET PG aspirants, he's on apps, he's everywhere. So, his name is Dr. Dinesh Yadav, sir, and he is teaching to foreign medical graduates in Team Motivation Coaching Academy, to NEET PG aspirants in Dr. Bhatia Coaching Institute. He's available on a app, mobile-based app, that is DNA, where he is teaching pharmacology. He is also teaching on an academy and taking live classes nowadays there through for pharmacology. So he's the person. He's a kind of person available for his student every time you approach him. He is very helpful, and I'm glad to have him here with me. And let's welcome him. Let's welcome him together. Hello and welcome to Medi Simplified. Today with me is Dr. Dinesh Yadav sir, national level faculty for pharmacology. Welcome, sir. Welcome to our channel. So before starting this questions, I'll let people know something about you. So recently, sir is teaching in to foreign medical graduates as well as the PG students also. So these are few of sir's. This is sir's book, name by name, Dr. Dinesh, Pharmacology Made Simple. It's a very wonderful book. I have studied from this book during my FMG preparation for pharmacology. Then sir is also teaching pharmacology on an app called as DNA, which is a mobile-based app for learning. And there he is also teaching pharmacology. Sir is also teaching on an academy. He is teaching live now on an academy, and here is a code that is Dr. Dinesh, from where we can get 10% off on any an academy subscription. Then sir is how he is available right now for us for this interview. The same way he is always available on Facebook to his page, that is Dr. Dinesh Medical Study Group. So this is sir's page where he keeps on adding different ideas how to study pharma, different topics of pharmacology, mnemonics, everything. So I'll request everybody to join this group, and the link will be mentioned in the description. Also, there is a Telegram group. This is the it is also meant, the link will be sent in this description again. तो इतने सारे चीजें हैं जो सर करते हैं. तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन शुरू करते हैं सर. ये तो इंट्रोडक्शन हो गया आपका, और थैंक यू हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए. Yeah, thank you, Shubham. Thanks a lot for taking me for this video. And it is one of the, I would say it's a good opportunity to interact with the brilliant students like you. So, and to connect with all the other students with your platform, that is Medi Simplified. So you are also providing the good knowledge to the students, as well as you are giving the good information to all the students, right? So that's a good platform. So good work. Thank you, sir. Thank you very much. So, sir, let's start that. How should one approach for pharma? अगर पहली बार pharmacology पढ़ रहे हैं हम, तो कैसे शुरू करना चाहिए? क्योंकि आइडिया नहीं होता है कि क्या करना है फार्मा में, कैसे करना है. सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है काफी हर एग्जाम में. तो प्लीज आप बताओ कि स्टार्ट कैसे करते हैं फार्माकोलॉजी, स्टार्ट करने क्या है, कैसे अप्रोच करना चाहिए? यस, तो बेसिकली शुभम, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्रोफ में हो, राइट. हर प्रोफ के स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेटजी अलग होती है. तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी स्टार्ट करते हो. I would say कि if you start early, then it is well and good, right? Suppose if you start in second prop, I never say that you start from the first prop. In first prop, mostly we go to the college, we try to adjust ourselves, right? And we are having anatomy, physiology, biochemistry in the first year subject, right? So same, I think, for foreign medical graduates also, when you are going to other country, first you have to adjust in that situation, right? In your hostel, in that environment, mostly we are having the chilling environment over there, so you have to adjust with that environment, right? You make new friends, right? So वो सब साथ में चल रहा है, and साथ में you have to study the anatomy, physiology and the local language also.
right? But at least in second prof you should start this subject. This subject is basically the base of medical science, right? That's why it is called as paraclinical subject. It is the base of medical science. Whenever you think about the treatment of any disease, right, whether it is medicine or it is psychiatry, it is derma, it is obstetrics, in any medical disorder, the medical treatment means pharmacological treatment, right? So then if you have the good knowledge of drugs, about their mechanism, about their side effect, about their important uses, about the pharmacokinetic, about the interaction, then not only it helps for your these clinical subjects, as well as it is very important for your I can say clinical experience also, right? If pharmacology subject is important for both purpose, right? It's not only for theoretical as well as for practical purpose also, it is very important. So start करने की अगर हम बात करें कब से, तो सेकंड प्रॉप से स्टार्ट करना चाहिए डेफिनेटली. लेकिन फिर भी अगर सपोज करो, डिपेंड करता है, आप सेकंड प्रॉप से अगर स्टार्ट करते हो तो एज आई सेड इट इज वेल एंड गुड. तो फिर आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो. जितना हो सकता है स्टैंडर्ड बुक प्रीफर करिए. स्टैंडर्ड बुक्स में मैं कहूंगा कि आप केडी त्रिपाठी यूज कर सकते हैं, राइट? इंडिया के हिसाब से आप शर्मा एंड शर्मा करके आती है, वो भी इंडियन ऑथर की बुक है, इजी लैंग्वेज है, वो भी आप यूज कर सकते हैं. कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, राइट? आपके पास पूरा टाइम होता है, आप अपना जितना टाइम दे सकते हैं आप एंजॉय भी करिए, लेकिन साथ साथ अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते चलिए. सेकंड ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे कोरिलेशन करिए. आजकल दिस कोरिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, जो आजकल एक नया वर्ड, जो टर्मिनोलॉजी आजकल बड़ा हिट है इंडिया में, कि इंटीग्रेशन, राइट? बिकॉज इंटीग्रेशन आपका अगर नहीं होगा तो आप कोरिलेट नहीं कर सकते. तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन एज वेल एज वर्टिकल इंटीग्रेशन. तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन आप ऐसे कर सकते हैं कि आप जब पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें आप कार्डियक डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं, तो उसी टाइम पे आप फार्मा में कार्डियक डिसऑर्डर्स की ड्रग्स पढ़िए, तो हो गया आपका मेडिसिन पूरा, राइट? आपने पैथोलॉजी वहां से पढ़ लिया, आपने ड्रग्स इधर से पढ़ लिया, तो सिर्फ आगे जाके आपको मेडिसिन में डायग्नोसिस, क्लिनिकल फीचर्स पढ़ना है, राइट? सो आपका आधा मेडिसिन यही कवर हो जाएगा अगर आप सेकंड प्रॉप में अच्छे से स्टडी कर लेते हैं. लेकिन सपोज करो कि आप बाद में स्टार्ट करते हैं, सपोज कि आप कहो कि मैं सर फाइनल ईयर में फार्मा स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम, तो फिर मैं नहीं कहूंगा कि आप स्टैंडर्ड बुक्स पे जाइए. तो फिर डेफिनेटली फिर आपको जो है कोई ना कोई क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगा. तो फिर आप क्लास ज्वाइन करिए, आप लेक्चर अटेंड करिए, राइट? हम लोग हैं इसलिए बने हुए, राइट? हम आपको लेक्चर्स देंगे, हम आपकी कॉलेजेस में भी आते हैं, हम आपको लाइव लेक्चर्स भी देते हैं, ऑनलाइन भी देते हैं, फेस टू फेस भी देते हैं, राइट? तो फिर आप वो करिए और उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिएगा. यस, ठीक है. और अगर जैसे कि अभी इस वक्त नहीं पॉसिबल है, तो आप अब तो एप्स वगैरह पे भी पढ़ा रहे हैं, तो वहां पे भी देख अब सकते तो ऑनलाइन है. हैं. हाँ, अब तो सब शुभम इतना ऑनलाइन. अच्छा हो गया है इंटरनेट की वजह से कि ये सब प्रॉब्लम्स हमारे टाइम पे हुआ करती थी कि क्या करें. अभी तो बहुत आसान है, सबके पास इंटरनेट अवेलेबल है, चाहे इंडिया हो चाहे बाहर हो, राइट? ऑनलाइन लाइव क्लासेस हो रही है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करवा रहे हैं. जैसे मैं खुद अनअकैडमी पे लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, राइट? मैं टीम की तरफ से जो है जूम पे क्लासेस लेता हूँ ऑनलाइन. तो बहुत सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब इतने सारे स्टूडेंट्स एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं और हमें लग रहा है कि हम वहीं बैठ के उनको पढ़ा रहे हैं. तो ये बहुत अच्छे ऑप्शन है आजकल लाइव क्लासेस लेने के. ठीक है. तो सर पढ़ तो एक बार पढ़ लिया आप, ठीक है. अब उसके बाद वो ड्रग्स ना याद नहीं रहता है, क्लासिफिकेशन याद नहीं रहता है, ड्रग्स याद नहीं रहता है. तो कुछ कोई ट्रिक्स बता दो या कोई निमोनिक टाइप कई चीजें हो कि ड्रग्स याद रह पाए, क्योंकि सबके साथ यही प्रॉब्लम होता है. बिल्कुल ठीक बात है. मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. हाँ जब आपने रशिया से किया है तो आप वहाँ गए होंगे, तो वहाँ के लोगों के नाम अलग होंगे, राइट? जो आपके साथ में पढ़ते होंगे उनके नाम अलग होंगे. तो क्या आप जब उनसे फर्स्ट टाइम मिले, उन्होंने अपना नाम बताया, तो क्या जब आप सेकंड टाइम उनसे मिले तो क्या आपको उनका नाम याद था, राइट? नहीं. आपको सबके एक बार में बाई चांस कोई एक या दो के ही नाम याद हुए, बाकी काफी लोगों में आप कंफ्यूज कर गए, हाँ, राइट? क्योंकि वो आपके लिए नए नाम थे. लेकिन इंडिया में क्योंकि आपने ये नाम सुने हुए हैं कि ये दिनेश है, ये शुभम है, राइट? तो आपको इजी याद हो जाता है, राइट? तो वो चीज नई है. तो ऐसे ही ड्रग्स के नेम है हमारे लिए नए हैं. तो होता क्या है कि नया नाम है तो हमारे माइंड में उसको थोड़ा टाइम लगता है, रिटेन करने में टाइम लगता है. तो उसके लिए आप क्या करते हैं, जब उस वहां पे अपने जो साथ में स्टूडेंट्स थे उनसे दोबारा मिले, आपके प्रोफेसर से आप 2-3 बार मिल लेते हैं, तो आप पहचानने लग जाते हैं कि ये जो है हमारे ये प्रोफेसर हैं, ये वो स्टूडेंट है, आप उनके नाम भी याद रख पाते हैं. तो सेम विद द ड्रग्स नेम ऑल्सो, राइट? द ओनली की इज मल्टीपल रिवीजन. मैं कहूंगा कि आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए, उसके बाद आप रिवीजन में
बार बार क्लासिफिकेशन रिवाइज करिए जब आप अपनी कॉलेज में हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपने क्लियर कर लिए वो कभी आप भूल नहीं सकते हो। अब आप जो है क्लासिफिकेशन को जितनी बार हो सके, राइट, चार्ट्स बना बना के रखिए यूनिट वाइज की, ये सीवीएस की ड्रग्स हैं, ये एएनएस की ड्रग्स हैं। आजकल तो आप अपने मोबाइल में स्टोर कर लेते हो सब कुछ, पीडीएफ बनाइए मोबाइल में स्टोर कर लीजिए। कहीं भी जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, फ्लाइट में हैं, राइट, ऑफलाइन मोड पे आप उनको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ बार बार उनको बोलिए कि मैं तुझे सीवीएस की ड्रग बताता हूँ, ये नई ड्रग आई है, राइट। आपस में जितना डिस्कस करेंगे, जितना बोलेंगे, आपको याद रहेगा। आपने देखा होगा जब पेशेंट आता है डॉक्टर के पास, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि डॉक्टर साहब को तो सारी दवाइयों के बारे में पता है, राइट। वो कभी ये नहीं सोच रहा होता कि डॉक्टर साहब बुक खोलेंगे और अब देख के बताएंगे कि कौन सी दवाई लिखनी है। तो अभी तो आपको जेनेरिक नेम याद करने, बाद में आपको ब्रांड्स भी पता होंगे, एक एक दवाई के 10-10 ब्रांड आपको पता होंगे, राइट। लेकिन उसके लिए टेंशन नहीं लेना, अभी आप जेनेरिक नेम याद कर लो। जब क्लिनिक खोलोगे या हॉस्पिटल में काम करोगे तो एमआर करके बंदे आएंगे, तो वो लोग बोलते हैं ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, मैं बोलता हूँ मेमोरी रिटेंशन है। एमआर मेमोरी रिटेंशन, वो बार बार आपको आके अपने ब्रांड की मेमोरी को रिटेन करवाते हैं। तो उनका काम भी वही है, वो आपको रिवीजन करवा रहे हैं, सुबह डेली आ जाएंगे आपके पास, राइट। तो ऐसे ही आप डेली कोशिश करिए कि एक टॉपिक का रिवीजन करना है, सिर्फ क्लासिफिकेशन का। आप देखिए 6 महीने में सारी ड्रग्स आपकी टिप्स पे होंगी, राइट। है कुछ नहीं, आप एस इनहिबिटर्स याद करते हो, आपने कहा प्रिल है, लास्ट में प्रिल है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आपको किस पूरी कंप्लीट लिस्ट याद करनी है, इतना पता होना चाहिए कि प्रिल है तो एस इनहिबिटर है, साल्टन है तो एआरबीज है, राइट। तो आधी तो वैसे ही हो जाएगा, राइट। लोल है तो बीटा ब्लॉकर है, राइट। तो ऐसे करके आप अगर जब याद करते हो तो बहुत चीजें आसान हो जाती हैं। और लोग क्या करते हैं, इसको लेंदी बना लेते हैं कि बड़ा मुश्किल है, इतने सारे नाम कैसे याद होंगे। मैं कहता हूँ उसको फन वे में याद करो, आपस में एक दूसरे को जो है सुनाओ, डिस्कस करो। चाय पे चर्चा आजकल बड़ा हिट वर्ड है, तो चाय पे चर्चा में हम लोग तो मेडिकल स्टूडेंट है, राइट, हम लोग तो मेडिकोज हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपनी चाय पे चर्चा होनी चाहिए कि ड्रग्स पे चर्चा, राइट। हाँ सर। तो सर अब ये एक और प्रॉब्लम है कि जैसे कई बच्चे अभी सितंबर में एग्जाम देंगे एफएमजी की या दिसंबर में दें, तो उनके पास अब टाइम पीरियड बहुत कम है ना। तो अब अगर उन्हें बहुत सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज करते हैं, तो कम टाइम में सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना हो, तो जैसे अगर फार्मा को थोड़े कम टाइम में रिवाइज करना हो, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो क्या कैसे करना चाहिए? शुभम देखिए, इसके लिए सब हमेशा एक ही स्ट्रेटेजी काम करती है जब आपको शॉर्ट टाइम में रिवाइज करना हो, कि डोंट गो विद एवरीथिंग, राइट, सेलेक्ट द इंपॉर्टेंट थिंग। कैसे सेलेक्ट करें? आप पीछे के 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए, नॉट ओनली फॉर एफएमजी, एफएमजी उठाइए, नीट पीजी के क्वेश्चन पेपर उठाइए, राइट, जिपमेर उठाइए, एम्स उठाइए, पीजीआई उठाइए। आपको वो क्वेश्चंस में से एमसीक्यू नहीं करने हैं, वो क्वेश्चन सोल्व नहीं करने हैं, आपको सिर्फ एक डायरी बनानी है और उस डायरी में ये लिखना है कि फार्मा में, जनरल फार्मा से किस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, सीवीएस में किस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है, सीएनएस में किस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। आप देखेंगे हर 2-3 साल में कुछ टॉपिक्स बड़े हिट होते हैं, उन्हीं टॉपिक्स पे बहुत बार क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एमसीक्यूज रिपीट नहीं होते हैं, वो ट्रेंड चला गया, राइट। अभी टॉपिक रिपीट होता है, एचआईवी पे क्वेश्चन हर साल आता है, टीबी पे क्वेश्चन हर साल आता है, तो टॉपिक रिपीट होते हैं। तो वो टॉपिक्स की एक लिस्ट बनाइए सब्जेक्ट वाइज और यूनिट वाइज, कि सपोज फार्मा में तो फिर आप यूनिट में, कि जनरल फार्मा में काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन पे क्वेश्चन आता है, आप लिख लीजिए टॉपिक 1, इंपोर्टेंस वाइज लिख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट, ठीक ठाक सा। उसके नीचे 1-2 बार पूछा हुआ, एक लिस्ट बना ली, बचा हुआ छोड़ दीजिए, क्योंकि अब टाइम तो है नहीं। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारे को 150 मार्क्स चाहिए, उसके लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है, टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए और सारे सब्जेक्ट्स में से लिस्ट बनाइए, राइट। मैं कहूंगा कि कोई भी, अब ऐसे लोगों के लिए मैं कहूंगा कि कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं, उस सब्जेक्ट में भी वो टॉपिक, क्योंकि अब हम रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि अब हम 300 को टारगेट नहीं कर रहे हैं, अब हम टारगेट कर रहे हैं कि 150 लाने, तो 200 क्वेश्चन हमारे ठीक होने चाहिए एग्जाम में, तब बाहर आके 150 पहुंचते हैं, क्योंकि 50 तो हम बाहर आते आते कर लेते हैं गलत, राइट। तो इसलिए हमारा टारगेट अब 200 है, तो इसलिए हमें टॉपिक्स जो है 100 हटाने हैं, इसलिए हमें सब्जेक्ट नहीं हटाना है, क्योंकि अब हम हर सब्जेक्ट में से टॉपिक हटा रहे हैं। तो सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए और उन टॉपिक्स को रिवाइज करिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको ज्यादा बार रिवाइज करिए,
तो आपकी स्ट्रेटेजी इस हिसाब से आपको प्लान करनी है अब, लेकिन एटलीस्ट 2-3 महीने का अगर टाइम है तो उसको वेस्ट नहीं करना है, राइट? क्योंकि अगर एफएमजी एग्जाम आपका टारगेट सितंबर ही है, क्योंकि अगस्त या सितंबर में होगा, तो आपके पास टाइम फिर बहुत कम है, तो उसको वेस्ट नहीं करना है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि एफएमजी अगर आपके थोड़े से भी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको जस्ट आइडिया भी है कि क्या होती है मेडिकल साइंस, तो 3 महीने अगर आपने जम के स्टडी कर लिया, जैसे मैंने बताया स्ट्रेटेजी बना के, तो आपका साल बर्बाद होने से कोई नहीं रोक, राइट? साल बर्बाद नहीं हो सकता, राइट? और इसको आप जो है वेस्ट नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है जी सर। तो जैसे आपने बताया कि रिसेंट टाइम्स में ऐसे क्वेश्चंस के, तो अगर आप खुद से भी कुछ हाई यील्ड टॉपिक्स बता देंगे तो मैं उसको कोशिश करूंगा कि कहीं लिख के इंस्टाग्राम पे अपने पेज पे पोस्ट कर दूं, और उसके लिंक भी हम नीचे मेंशन कर देंगे तो लोग देख लेंगे। तो अगर आप कुछ टॉपिक्स बता दें तो फिर वो भी मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। जी जी शुभम, जैसा मैंने बताया कि आप देख रहे हो इंटरनेट का फायदा, कि हाँ अब पहले होता था कि हम लोग टॉपिक्स बनाते थे, राइट, हाँ खुद से, और फिर पढ़ाई करते थे। अब आप जैसे लोग जो है टॉपिक्स ऑलरेडी लिख के और बच्चों को दे देंगे कि ये टॉपिक्स पढ़िए, तो देखिए टाइम बच गया, हाँ राइट? तो यही फायदा होता है ऑनलाइन चीजों का, राइट? तो अब आप जो है, मैं आपको सिर्फ मेरे सब्जेक्ट के बारे में बता सकता हूँ, हाँ मुझे सर। नहीं पता बाकी फार्मा। सब्जेक्ट्स के बारे में, राइट? तो अगर मैं फार्मा की बात करूं, तो शुभम सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें जनरल फार्मा, कॉन्सेप्चुअल है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आजकल जनरल फार्मा। जनरल फार्मा से अगर हम बात करें, सबसे पहले हाँ बायो अवेलेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, हाँ राइट? उसके बाद आपका आता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें लोडिंग डोज किस पे डिपेंड करता है, हाँ मेंटेनेंस डोज किस पे डिपेंड करता है, वो सब कुछ। सॉरी, देन उसके बाद आपका आता है माइक्रोसोमल एंजाइम्स, हाँ मेटाबॉलिज्म इन माइक्रोसोमल एंजाइम्स। उसके बाद आपका आता है चेंज इन पीएच फॉर यूरिन, जिसमें हाँ आप पढ़ते हो कि एसिडिक ड्रग्स में क्या करना चाहिए, बेसिक ड्रग्स के लिए क्या करना चाहिए। हर साल या हर दूसरे साल ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि एस्प्रिन पॉइजनिंग में क्या करते हैं, बारबिट्यूरेट पॉइजनिंग में क्या करते हैं। काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर काइनेटिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे एग्जाम में सर उसके इससे बाद दो आप, क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस इसलिए मैं लगातार। बता रहा हूँ ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप टाइप्स ऑफ रिसेप्टर ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म, ये हाँ एफएमजी नहीं, हर एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आएगा, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर ट्रांसड्यूसर मैकेनिज्म, की जीपीसीआर है कि वोल्टेज गेटेड लाइगेंड चैनल है कि क्या है, राइट? तो वो टाइप्स ऑफ रिसेप्टर मैकेनिज्म पे। उसके बाद आपका डोज रेस्पॉन्स कर्व, जिसमें कि थेरेप्यूटिक इंडेक्स, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स पे क्वेश्चन आता है, राइट? और थेरेप्यूटिक इंडेक्स के साथ साथ थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, कि उसको मॉनिटरिंग कौन सी ड्रग्स की करते हैं, जैसे कि लिथियम है, वो है, तो वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आजकल रिसेंट टॉपिक्स में जो फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है वो है फार्माको विजिलेंस, जो कि एडीआर से रिलेटेड है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, तो एडीआर एंड फार्माको विजिलेंस, ये आपका हो गया जनरल फार्मा की। उसके बाद अगर हम बात करें एएनएस में, तो एएनएस में बीटा ब्लॉकर हर साल क्वेश्चन आएगा, बीटा हाँ ब्लॉकर, राइट? तो हर साल क्वेश्चन आता है बीटा ब्लॉकर, राइट? अल्फा ब्लॉकर्स भी इंपॉर्टेंट है, बट बीटा ब्लॉकर्स जरूर पढ़ना है। फिर आपका क्वेश्चन है कैटेकोलामिन्स पे, एड्रेनलिन, नोरेड्रेलिन, डोपामिन, आइसोप्लिन, एक क्वेश्चन आता ही आता है कि इनको कैसे यूज करेंगे, या डोज, या फिर कैसे यूज करेंगे, राइट? सो कैटेकोलामिन्स के यूज पे क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो है आपका पैरासिम्पैथेटिक में ओपी पॉइजनिंग, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, यस सर। ओपी पॉइजनिंग, राइट? ओपी और कार्बामेट पॉइजनिंग पे क्वेश्चन आता है। नियोस्टिग्मिन का यूज, नियोस्टिग्मिन में क्वेश्चन आता है। एट्रोपिन के क्वेश्चन आता है, एट्रोपिन कहाँ यूज करते हैं, उसका साइड इफेक्ट क्या है, राइट? ये बात होगी आपकी एएनएस की। ऐसे ही अगर हम बात करें सीएनएस की, तो सीएनएस में एपिलेप्सी की ड्रग पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एपिलेप्सी की ड्रग पे, हाँ राइट? एपिलेप्सी के अलावा आपका एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स पे क्वेश्चन आता ही आता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स इन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स, राइट? क्वेश्चन आता ही आता है। लिथियम, हर साल क्वेश्चन आएगा लिथियम पे, हर साल, क्योंकि इतना ज्यादा यूज होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स इतने ज्यादा हैं, तो बाइपोलर डिसऑर्डर में लिथियम, राइट? सो बाइपोलर डिसऑर्डर की ड्रग्स या लिथियम आप बोल सकते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है। उसके अलावा बेंजोडाइजेपिन्स, हर साल क्वेश्चन आता है डायजेपाम लोराजेपाम पे कभी ना कभी, राइट? कि अल्कोहलिक पॉइजनिंग में, या सॉरी अल्कोहलिक ओवरडोज में यूज कर रहे हैं, राइट? विड्रॉल के टाइम पे, या फिर सेडेटिव्स में यूज कर रहे हैं, तो बेंजोडाइजेपिन्स पे क्वेश्चन आता ही आता है। फिर
एंजाइटी की ड्रग्स, वो भी बेंजोडाइजपिन सी हो गई आपकी, एंजाइटी की ड्रग्स हो गई। तो ये आपका हो गया सीएनएस, राइट। हो सकता है मैं कुछ मिस भी कर जाऊं, तो मैं आपको एक बाद में लिस्ट भी भेज दूंगा, राइट, अगर हो सकेगा, टाइम मिलेगा तो। ऐसे अगर हम बात करें रेसिपी में, लेकिन अभी जो एटलीस्ट सुन रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, ताकि वो खुद अपना लिख सके। रेसिपी में अस्थमा की ड्रग्स, राइट, हर साल एक क्वेश्चन अस्थमा में, चाहे वो मेडिसिन वाला पूछे चाहे वो फार्मा वाला पूछे, आपका एम होना चाहिए कि क्वेश्चन ठीक करना है। तो अस्थमा की ड्रग। अगर सीवीएस की बात करें तो सीवीएस में सर एस इनहिबिटर्स, जिसमें हम रेमिप्रिल वगैरह, तो एस इनहिबिटर्स या एआरबी एक ही चीज है, राइट, उस पे क्वेश्चन आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें हाइपरटेंशन की ड्रग, हाइपरटेंशन की ड्रग पे क्वेश्चन आता है। एंजाइना पे नाइट्रेट्स में से, नाइट्रेट्स या न्यूअर एंटी एंजाइनल ड्रग जरूर पड़े, न्यूअर एंटी एंजाइनल, जैसे इवाब्रेडिन वगैरह जो। एरिथमिया में खाली क्लासिफिकेशन, राइट, एरिथमिया में खाली क्लासिफिकेशन, कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, एफएमजी एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ। नीट पीजी में आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें आपका जीआईटी में, तो आपको कॉन्स्टिपेशन की ड्रग्स पता होनी चाहिए, कॉन्स्टिपेशन की ड्रग्स पे क्वेश्चन आता है, वो हिट टॉपिक है। बाकी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर तो सदाबहार है कि, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि सर कौन सी ड्रग यूज करेंगे, तो उसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप जीआईटी में क्लासिफिकेशन पढ़िए, उसके मैकेनिज्म पता होना चाहिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। उसके बाद हम बात करें सर हिमेटोलॉजी ड्रग्स, आप लिख दीजिए स्टार, 5 स्टार क्वेश्चन है हिमेटोलॉजी ड्रग्स पे, आएगा ही आएगा, हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हिमेटोलॉजी की ड्रग्स पे। क्यों? क्योंकि हिमेटोलॉजी जो है फार्मा में लोग पढ़ते ही नहीं है, मोस्टली क्या होता है, स्मॉल टॉपिक है छोड़ देते हैं, लेकिन ये पैथो में लोग पढ़ते हैं, राइट। और मोस्टली पैथोलॉजी में क्या होता है, वो ड्रग्स स्किप कर देते हैं, बाकी पूरा डिटेल आपको पढ़ा देते हैं, बट ड्रग्स का पार्ट आता है तो बोलते हैं कि ये तो हमारे काम, हम पैथोलॉजी में हम क्यों पढ़ाएं, राइट। और मोस्टली मेडिसिन वाले हिमेटोलॉजी इसलिए नहीं पढ़ाते, वो बोलते हैं तो पैथो में, राइट। तो होता क्या है कि ये ड्रग्स वाला पार्ट बेचारा नेग्लेक्टेड सा ही रह गया। लेकिन पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन उठा के आप देखिए, एक एक दो दो क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे एम्स का एग्जाम हो, चाहे नीट की, चाहे एफएमजी। तो हिमेटोलॉजी का क्लासिफिकेशन जरूर जरूर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन और रूट की, कौन से रूट से यूज करते हैं एंटीकोगुलेंट्स को, राइट। तो उसके तरह से पढ़ना है इसको। उसके बाद अगर हम बात करें आपका बच गया डायूरेटिक, तो डायूरेटिक में आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए, और उसके अलावा इंपॉर्टेंट है आपका कि इनके यूज क्या है, यूज एंड साइड इफेक्ट ऑफ डायूरेटिक्स, कौन से एडिमा में कौन से डायूरेटिक, जैसे ग्लूकोमा के लिए कौन से डायूरेटिक, पल्मोनरी एडिमा के लिए कौन सी डायूरेटिक, सेरिब्रल एडिमा के लिए कौन सी, तो उसके स्पेसिफिक यूज कौन से डायूरेटिक करनी, और जो साइड इफेक्ट की लिस्ट होती है डायूरेटिक्स की वो, राइट। आजकल स्पाइनोलैक्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, स्पाइनोलैक्टोन पे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है डायूरेटिक्स में, राइट। तो ये आपका हो गया डायूरेटिक से रिलेटेड। फिर अगर हम बात करें आपका एंटी माइक्रोबियल एजेंट पे, तो एंटी माइक्रोबियल में सबसे पहला, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है तो आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, सबसे पहला आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? बेस्ड ऑन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ना है एंटी माइक्रोबियल का, पेनिसिलिन से लेके और लास्ट में एंटी हेलमिंथिक ड्रग तक, पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ना है आपको। लेकिन पढ़ना कैसे? बेस्ड ऑन देयर मैकेनिज्म, कि कौन सी ड्रग सेल वॉल पे, कौन सी प्रोटीन सिंथेसिस पे, कौन सी आरएनए पे, कौन सी डीएनए पे, कौन सी जो है आपकी सेल वॉल पे, सेल मेम्ब्रेन पे, पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ना है आपको सारी एंटी माइक्रोबियल्स का, चाहे वो नॉन स्पेसिफिक हो चाहे स्पेसिफिक हो। उसके अलावा इसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट है थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन, या फिर आप सिंपली बोल सकते हो ड्रग्स फॉर स्यूडोमोनास पढ़ के जानी। जैसे जो हिट टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी में, वही उसी की ड्रग्स पता होना चाहिए। टॉपिक्स हिट है, माइक्रो में भी वही हिट है, लेकिन फार्मा में भी उसकी ड्रग्स हिट है, एमआरएस से स्यूडोमोनास, एनेरोबिक इन्फेक्शन, लिस्टीरिया, राइट। इनकी ड्रग्स पे क्वेश्चन आना ही आना है, राइट। अब इंपॉर्टेंट हो गया कोविड, राइट, तो उसके बारे में पता होना चाहिए, राइट, क्योंकि रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन उस पर भी आपने देखा, एम्स में भी आए। फिर इंडिया में अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो मान के चलो हर साल एक क्वेश्चन मलेरिया, एक क्वेश्चन एचआईवी और एक क्वेश्चन टीबी, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जब आप पास करते हो एमबीबीएस तो आपकी इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए कि बेसिक लेवल पे आप बैठो तो ये तो पता हो भाई टीबी का बेसिक इलाज क्या है। डॉट सेंटर पे आपको पीएचसी पे भी काम करना पड़े तो इंटर्न में भी आपको पता होना चाहिए। तो टीबी, एचआईवी, राइट, और मलेरिया, इनकी ड्रग्स, और हेलमिंथ, क्योंकि हेलमिंथ इंडिया में बहुत कॉमन है, हेलमिंथ इन्फेस्टेशन, तो उसकी ड्रग्स, राइट। तो ये आपको सारी पता होना चाहिए। बाकी पूरी फार्माकोकाइनेटिक्स और पूरी उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, स्पेसिफिक साइड इफेक्ट्स याद रखो,
राइट, कि जैसे आप वन लाइनर्स कुछ कर लेते हो, रेडमैन, वो कभी कभी आजकल ट्रेंड है, 2-4 वन लाइनर तो आते ही है कि रेडमैन सिंड्रोम किससे होता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम किससे होता है, इस टाइप के जो स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है सिर्फ वो याद करो, पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कैंसर की ड्रग्स में मैं सिर्फ और सिर्फ बोलूंगा साइड इफेक्ट, स्पेसिफिक साइड इफेक्ट, हार्डली 20 स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है कैंसर की ड्रग्स में, कि फ्लैजेलेट डर्मेटाइटिस किससे होता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस स्पेसिफिकली किससे है, एसआईएडीएच किससे है, कार्डियक जो है किससे है, रेडिएशन रिकॉल किससे है, हेमरेजिक सिस्टाइटिस किससे है, और प्लेटिनम कंपाउंड्स के क्या साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट और उनकी साल्वेज थेरेपी, कि उनको कैसे रोकोगे, वो इंपॉर्टेंट है कैंसर में, क्योंकि एमबीबीएस लेवल पे जब कैंसर का पेशेंट आपके पास आएगा तो कैंसर का इलाज करवाने नहीं आ रहा है, वो आपके पास आएगा कि कीमो चल रही है डॉक्टर साहब, मेरे को उल्टियां हो रही है, कीमो चल रही है डॉक्टर साहब, हमको चेस्ट में पेन हो रहा है। तो इसलिए आपको बेसिक उसका साल्वेज थेरेपी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आपकी होगी कीमोथेरेपी के बारे में, राइट। आई थिंक ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हमने कवर कर दिए, अगर कोई बच गया हो तो आप मुझे बता दो। नहीं सर ठीक है, एएनएस, सीवीएस, सीएनएस लगभग सारा हमने सारे कवर सारे कर हो लिया, गए। राइट। हाँ जी, ठीक है तो सर हाँ एंडो, अब सॉरी 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 ओके सॉरी, सर हाँ हाँ एंडो में से जो है जरूर हार्मोन जो है वो पढ़ लेना, ओप्स गायनी से, हाँ ओसिपिल्स वगैरह, मैं नहीं कह रहा फार्मा से पढ़ो। कॉन्ट्रासेप्टिव टॉपिक जरूर पढ़ना है, एमटीपी एंड कॉन्ट्रासेप्शन, वो आप ऑब्स्टेटिक्स में पढ़ना, पीसीओडी ऑब्स्टेटिक्स में, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ऑब्स्टेटिक्स में, हर साल क्वेश्चन आएगा इन दोनों पे, लेकिन वो आप ऑब्स्टेटिक्स से पढ़ लेना, अगर जरूरत लगे तो ड्रग्स फार्मा से पढ़ो, डायबिटीज की ड्रग्स और थायराइड की ड्रग्स, डायबिटीज और थायराइड की ड्रग्स, एंटी डायबिटिक्स और एंटी थायराइड, और स्पेशली न्यूअर एंटी डायबिटिक्स पे हर साल क्वेश्चन आ रहा है, और थायराइड की ड्रग्स में एंटी थायराइड पे आता ही आता है क्वेश्चन, राइट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जी। ठीक है सर। सर अब ये कि एग्जाम में जैसे हर सब्जेक्ट के कुछ वेटेज दिए होते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता तो है नहीं कि वो उसी वेटेज के हिसाब से पेपर बन रहा है। तो हर सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट्स के इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उन सब्जेक्ट्स के वेटेज जब ग्रॉसली चेक करते हैं तो बहुत ज्यादा निकल के आता है। तो ऐसे ही फार्मा के किसी भी एग्जाम में, चाहे एफएमजी हो, नीट हो, एम्स हो, तो क्या इंपॉर्टेंस है कि क्यों एक मतलब अगर प्लान कर रहे तो फार्मा एक ऐसा सब्जेक्ट है बिल्कुल छोड़ना सोचना भी नहीं चाहिए, तो उसकी एक इम्पोर्टेंस है, तो वो एक बार आप एक्सप्लेन कर दो। तो शुभम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मेरे को आजकल काफी स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि सर अब तो नेक्स्ट हो जाएगा, तो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आएंगे, तो आप क्या करोगे? मैंने कहा भाई हम तो बेरोजगार हो जाएंगे, राइट राइट। लेकिन मैंने कहा आप हमारा मत सोचो, आप अपना सोचो, राइट। सबसे पहले आप स्टूडेंट हो, अपना सोचना चाहिए कि हमें पहले एग्जाम पास करना है, हम लोग डिग्री होल्डर हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे, डोंट वरी, हम नॉलेज शेयर करते हैं, शेयर करते ही रहेंगे, राइट। तो देखिए आपने एग्जाम दिया है तो आपको तो समझ में आ ही गया है, जब एग्जाम दे लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि क्या होता है बेसिकली ये सिनेरियो। देखिए जब आपको बात करते हैं कि सपोज कि पैटर्न देना है, तो आपको पैटर्न में लिख के देना ही पड़ता है कि कौन से सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन, वो एक स्टैंडर्ड सिनेरियो है, हर एग्जाम में आपको लिख के देना पड़ता है कि ये टॉपिक्स हैं, ये ऐसा होता है। लेकिन अब मेडिकल साइंस जो मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन है, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, राइट। अब आप ये नहीं कह सकते ना कि ये क्वेश्चन फार्मा का कैसे डाल दिया जी, 15 क्वेश्चन ही आने थे। भाई मेडिसिन वाला भी तो ट्रीटमेंट पूछेगा, साइकेट्री वाला भी तो एंटी साइकोटिक पूछेगा, बाइपोलर डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट पूछेगा, राइट। अब डर्मा वाला भी तो उस पूछेगा कौन सी ड्रग से रिएक्शन हुआ, राइट। तो कोई भी सब्जेक्ट जो है ऐसा है ही नहीं मेडिकल साइंस में जिसमें आप कह सको कि ये कोरिलेशन नहीं है। जैसे इसी बार की अभी एम्स की ही बात करें तो क्वेश्चन आया स्नेक बाइट का, राइट। अब लोग कहेंगे कि भाई वो फोरेंसिक का क्वेश्चन था, लेकिन उसमें ऑप्शन देखो एक भी फोरेंसिक से रिलेटेड ऑप्शन नहीं था, उसमें तो एएसवी पे क्वेश्चन पूछा, नियोस्टिग्मिन पे क्वेश्चन पूछा, राइट। इसलिए आजकल ट्रेंड क्या है, एक स्टैंडर्ड टॉपिक उठाओ, उसमें से एक ऑप्शन में डाल दो उसके ड्रग थेरेपी, एक ऑप्शन उसकी फिजियोलॉजी के बारे में पूछ लो या पैथोलॉजी के बारे में पूछ लो, एक उसका डायग्नोसिस के बारे में पूछ लो, तो सारे सब्जेक्ट कोरिलेट भी हो गए, राइट। अब आप सोचो कि मैं सिर्फ मेडिसिन पढ़ के वो बात कर लूंगा, नहीं। अब आपसे पूछें कि हार्ट फेलियर के बारे में क्वेश्चन आएगा, तो सपोज करो पूछेगा कि बीटा ब्लॉकर्स आर नॉट यूज्ड इन एक्यूट हार्ट फेलियर, राइट, ये ऑप्शन दिया हुआ है, राइट। तो अब आपने मेडिसिन पढ़ा हुआ है, अगर वास्ट में पढ़ा हुआ है, आपकी बहुत स्टैंडर्ड नॉलेज है, राइट, तो देखिए फिर तो कोई वो ही नहीं है। अगर आप पूरी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हो तब तो आपकी कोई बराबरी ही नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, आप देख रहे हैं कि हर कोई आजकल शॉर्टकट्स में जा रहा है कि भाई कम से कम में मैं एग्जाम निकाल लूं,
तो इसलिए फिर आपको हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट है। तो फार्मा से अगर आप देखेंगे, लोग कहते हैं 15 से 20 क्वेश्चन, मैं कहता हूँ हर एग्जाम में 30 क्वेश्चन। आप मेरे को चैलेंज कर देना, मैं उस पेपर में से निकाल के 30 क्वेश्चन आपको दे दूंगा कि ये फार्मा से, और आप बता देना कि ये नहीं, राइट। तो इतना इंपॉर्टेंट ये सब्जेक्ट है, इसलिए इस सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं करना है, इस सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट नहीं करना है, राइट, नहीं तो आप नेग्लेक्ट हो जाएंगे। ठीक है सर। तो ये एक और क्वेश्चन था कि फार्मा दूसरे सब्जेक्ट्स में हेल्प कैसे करता है, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक बार बताया आपको, स्टार्टिंग में ही आपने बता दिया। तो मैंने आपको बता दिया कि भैया मेडिसिन पढ़ते हो तो जब फार्माकोथेरेपी आएगा, मैं तो कहता हूँ सर्जरी में भी बीपीएच पढ़ते हो आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है यूरोलॉजी में बीपीएच। जब आप बीपीएच पढ़ते हो तो बीपीएच में भी लिखा होता है फार्माकोथेरेपी। सिर्फ ट्रांसयूरिथ्रल डिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट पे थोड़ी ना क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है कि भैया 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स आर यूज्ड बाय, राइट, स्टैटिक कंपोनेंट पे कौन सी ड्रग एक्ट करेगी, राइट। अब इसी से अगर बीपीएच को देखिए, ऑप्थेल में क्या कोरिलेशन बन रहा है, फ्लोपी आइरिस सिंड्रोम कौन सी ड्रग से होता है। अब बीपीएस तो सर्जरी का, कहाँ यूरोलॉजी और कहाँ ऑप्थेल्मोलॉजी, देखो फिर भी कोरिलेशन हो गया। तो इसलिए मेडिकल साइंस में सब कुछ रिलेशन में है, राइट। पूरा शरीर एक ही है, कंप्लीट बॉडी के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो सब कुछ कोरिलेट करके पढ़ना है। जो लोग ये सोच के बैठे हुए हैं, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, तो ये सोच के बैठे हुए हैं कि मैं तो मेडिसिन, सर्जरी, गायनी पढ़ लूंगा, तो भैया फिर तो तुम्हारा भगवान ही भला कर सकता है, राइट। क्योंकि मेडिसिन, सर्जरी, गायनी अगर सीधा पढ़ लेते तो सर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में क्यों ये सब्जेक्ट बनाए जाते, सीधा हम जाते ही मेडिसिन ही उठा लेते। तो बेस बनाना जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सेकंड प्रॉप से ही थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना स्टार्ट कर दो। एंजॉय करो, लाइफ एंजॉय करने के लिए भी है, लेकिन एंजॉयमेंट के साथ साथ अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकलता है तो उसकी अलग ही खुशी होती है, और वो शिवम तुम्हारे से ज्यादा अच्छे कोई नहीं समझ सकता उस चीज को, बिल्कुल राइट। इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट इज द लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। सर ठीक है, ये तो हो गया फार्मा से रिलेटेड सारे डिस्कशन। अब जैसे कि कोई एस्पिरेंट है नीट पीजी का, और ही इज गेटिंग अ सीट इन फार्माकोलॉजी फॉर पीजी, सो व्हाट इज हिज फ्यूचर एज अ फार्मा में, पीजी का क्या स्कोप है फ्यूचर में? जी, ये भी आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा, वो छांट छांट के क्वेश्चन आपने बनाए। तो देखिए, हमेशा जब भी आपको सीट उठानी हो, एक चीज हमेशा याद रखना, दूसरे को देख के नहीं उठाना, राइट, कि उसने ये कर लिया मुझे ये करना है। हर बंदे का अलग कैलिबर है, हर स्टूडेंट का अलग टैलेंट है, अलग इंटरेस्ट है, अलग एम है, राइट। हर आपको डिसाइड करना है अकेले, अपने पेरेंट्स से भी नहीं पूछना है कि मुझे कौन सी ब्रांच उठानी है, क्योंकि पेरेंट्स भी लास्ट में यही कहेंगे कि भैया तुमने उठाया यार, हम क्या कर सकते हैं, राइट। तुम अपनी मर्जी से, तुम मना कर देते हमें नहीं उठानी सर्जरी, तो हम तो मना कर देते तुम्हें, हम तो तुम्हारे साथ ही हैं हर डिसीजन में। इसलिए आपको डिसीजन लेना, आपकी लाइफ है, अकेले डिसीजन लेना। कैसे लेना? एक नोटबुक लेना और उस पर लिखना कि मुझे अल्टीमेटली करना क्या है, शहर में रहना है या गांव में। कुछ लोग कहते हैं वो तो देख लूंगा बाद में, जैसी ब्रांच मिलेगी उसके हिसाब से। तो सर फिर तो फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसे लोगों के लिए तो कुछ भी उठा लो। लेकिन होता क्या है कि वो पहले देख लूंगा वाला एटीट्यूड बाद में नहीं चलता है, बाद में लगता नहीं यार मैं तो मुंबई का हूं, तो मैं दिल्ली क्यों रहूं, राइट। मेरे को वहां घर लेना पड़ेगा, मेरा ऑलरेडी वहां घर है, इसलिए मैं तो मुंबई में ही रहूंगा, राइट। तो आपको देखना है आपको रहना कहाँ है, आपको अर्बन में रहना है, सेमी अर्बन जगह जाना है, रूरल में जाना है, राइट। आपको कितना पैसा कमाना है, कितना टाइम दे सकते हो, राइट, इस फील्ड के लिए, आपकी फैमिली को टाइम कितना देना है, राइट, आपके बच्चों को टाइम कितना देना है, राइट। हर चीज आपको लिखनी है और उसके हिसाब से ब्रांच सेलेक्ट होती है। कभी भी ये सोच के ब्रांच मत उठा लेना कि इस ब्रांच में बहुत पैसा है। कुछ लोग तो कहते हैं ट्रेंड में है आजकल रेडियोलॉजी, ट्रेंड बस कुछ होता ही नहीं है भाई, ट्रेंड कुछ नहीं है, ट्रेंड चला जाता है। ट्रेंड में तो शाहरुख खान भी था, लेकिन आजकल तो लोग बाग जो है, आपने देखा होगा, आयुष्मान खुराना को पसंद करने लग गए। बिल्कुल सर। तो ट्रेंड चला जाता है। होता क्या है कि मैंने ट्रेंड के चक्कर में रेडियो उठा ली, पता चले 5 साल बाद ट्रेंड चला गया, राइट। तो मेरी तो जिंदगी की 35 साल आगे की मैं परेशान हो गया, राइट। पूरी जिंदगी पड़ी है। इसलिए ट्रेंड पे नहीं जाना है। इंटरेस्ट अगर रहेगा, रेडियो में मेरा इंटरेस्ट है तो मैं जिंदगी भर खुश रहूंगा कि मैंने रेडियो किया। साइकेट्री में मेरा इंटरेस्ट है तो मैं जिंदगी भर खुश रहूंगा कि मैंने साइकेट्री की, राइट। इसलिए ऐसे ही नहीं उठाना। कुछ लोग दूसरे को देख के उठा लेते हैं कि ये ब्रांच कर लेता हूँ, वो भी तो अच्छा कर रहा है, उसमें उस चीज का टैलेंट था क्योंकि उसका इंटरेस्ट है। इसलिए इंटरेस्ट देखो आपको किस चीज में है। मुझे सर्जरी में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं सर्जरी कभी नहीं करना चाहता,
राइट। इसलिए आपको उस हिसाब से देखना है, सर्जिकल चाहिए कि नॉन सर्जिकल चाहिए, राइट। अगर मेडिकल ब्रांच चाहिए तो पैरामेडिकल चाहिए कि प्री मेडिकल चाहिए कि आपको क्लिनिकल चाहिए, वो सब देख के कहाँ रहना है उसका पूरा सोच के आपको डिसाइड करना है। फिर भी किसी को हेल्प चाहिए, हम लोग हैं, पर्सनली आप हमसे कभी भी पूछ सकते हो, जो भी गाइडेंस होगा हम बताएंगे कि ये है, उसके प्रो एंड कॉन्स बताएंगे, डिसाइड आपको करना है। लेकिन अगर आप बात करें मेरे सब्जेक्ट की कि सर फार्मेक ब्रांच का, तो सर देखिए फार्मेक ब्रांच में सबसे पहला स्कोप तो सर टीचिंग लाइन है। आप मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, जब तक आप चल रही है जिंदगी तब तक आप मेडिकल कॉलेज में अपना पढ़ाइए और बुढ़ापे में रेस्ट करिए, राइट, पहला। लेकिन आप सोचो कि इसमें मुझे मिल जाएंगे बहुत सारे पैसे, तो नहीं, लेकिन लाइफ बहुत अच्छी है, शांति से जाओ, हफ्ते में 2-3 लेक्चर लो, राइट, बढ़िया आराम से तनख्वाह लो, रेस्ट करो, राइट। ये उनके लिए जो आराम पसंद लोग हैं। दूसरा, डॉक्टर भी कहलाएंगे और आराम पसंद लोग भी हैं, राइट। ऊपर से फार्मा में थोड़ा जो है ड्रग्स की नॉलेज है ही, तो आप जो है साथ में चाहो तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी कर लो। जिस स्टेट में प्रैक्टिस अलाउड है वहां पे आप इवनिंग में प्रैक्टिस कर सकते हो आप, राइट, क्योंकि काफी स्टेट है जहाँ पे प्रैक्टिस अलाउड है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है कि आप बिल्कुल क्लिनिक भी स्टार्ट कर सकते हो, आप एमबीबीएस तो हो ही, साथ में आपने एमडी भी किया है फार्मेक में, तो आपकी नॉलेज डेफिनेटली और अच्छी होगी। तो जो है आप किसी भी हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में या कहीं भी अपनी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हायर करती हैं, राइट। आपको पता ही है ग्रोविंग जो है सेक्टर है फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो उसमें एमडी फार्मेक को हायर करते हैं। लेकिन अगेन ज्वाइनिंग के टाइम पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। कोई सोचे मैं ज्वाइन करते मुझे कई सारे लाखों में रुपए मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। मेहनत हर फील्ड में चाहिए। जैसे आप नर्सिंग होम भी स्टार्ट करते हो तो शुरू में आपको मेहनत करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है, धीरे धीरे आपका ग्रो करता है, लोग आपको जानने लगते हैं, आप अच्छा करते हो, आप और ज्यादा सेवा करते हो, राइट। तो हर फील्ड का ऐसा ही है। फार्मास्यूटिकल में आप ज्वाइन करते हो तो रिसर्च में जा सकते हो, मार्केटिंग में जा सकते हो, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। लेकिन उसमें भी आपकी जॉब थोड़ी जितना हेक्टिक जॉब लोगे उतना अच्छा पैसा है, वेरी सिंपल। क्योंकि जितना हेक्टिक जॉब होगी आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होगी। अगर आप ट्रैवलिंग पसंद करते हो तो बहुत बढ़िया है, ट्रैवलिंग करते रहो, हर वीक वीकेंड में जो है आपको कंपनी भेजती रहेगी, मार्केटिंग करते रहो। तो वही मैंने बताया, डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट क्या है। तो ये तो जो मेन ऑप्शन है, उसके अलावा हर ब्रांच में मेडिकल में जो ऑप्शन है वो इसके साथ भी हैं। प्रैक्टिस करो या किसी भी नर्सिंग होम से जुड़ जाओ, वो सारे ऑप्शन हमेशा ही खुले रहेंगे। बाकी हमारी तरह टीचिंग कर सकते हो, ये भी एक स्कोप है, राइट। आपको लगता है कि आप इतनी हेक्टिक लाइफ जी सकते हो तो आप बिल्कुल इसमें भी आ सकते हो। ठीक है सर। तो सर बस एक आखिरी क्वेश्चन नहीं, आपके तरफ से कोई मैसेज, जैसे कि जो बच्चे अब सितंबर में अटेम्प्ट करना चाहते हैं उनके लिए, जो बच्चे दिसंबर में एफएमजीएस अटेम्प्ट करना चाहते हैं, और जो मेरी तरह नीट पीजी 2022 पे टारगेट कर रहे हैं, तो सबके लिए कुछ ना कुछ आपके तरफ से एक मैसेज या एडवाइस कर देते हैं। जी, देखिए जो टारगेट कर रहे हैं सितंबर के लिए, उनके लिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि सारे सब्जेक्ट के टॉपिक की लिस्ट बना के उनको रिवाइज करो, राइट, और 2-3 बार रिवाइज कर लो उसको। जो टारगेट कर रहे हैं नीट पीजी, उनके पास अभी टाइम है, वो ये नहीं कह सकते टाइम नहीं है, अभी भी टाइम है। मोस्टली जब आप मार्च में भी रिजल्ट आता है तो तैयारी मोस्टली जून से ही स्टार्ट करते हैं, उसके पहले 1-2 महीने आप बस कोशिश कर रहे होते हैं, असली जून या जुलाई से स्टार्ट करते हैं। तो टाइम है दिसंबर तक का, आराम से 6 महीने दिल लगा के पढ़िए। मैं कहता हूँ कि देखिए वही कि आप, होता क्या है मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कर रहा हूं कोशिश, ऐसे नहीं होता है। फिक्स कर लीजिए, या तो मुझे इस साल एंजॉय करना है या इस साल सिलेक्शन लेके अगले साल अपने को एंजॉय करना है, राइट। ये बीच वाला जो रास्ता है ना वो बड़ा गंदा होता है, ना तो आप मस्ती कर पाते हैं और ना पढ़ाई कर पाते हैं, राइट। इससे बेटर ये है कि एक रास्ता चुनो। हाँ, थोड़ा बहुत एंजॉयमेंट पढ़ाई के साथ सभी करते हैं, लेकिन होता क्या है कि वो बीच वाले स्टेज में रहते हैं और रात को सोते समय डेली स्ट्रेस में, आज भी नहीं पढ़ा, कल से पढ़ा स्टार्ट करूंगा। ये सब स्टूडेंट्स के साथ एक फेज चलती है, तो उस फेज से नहीं गुजरना है। या तो इस साल कर लो, नहीं तो छोड़ो, फिर अगले साल करना। सोच लो कि 1 साल एक्स्ट्रा लग गया, राइट, मेडिकल फील्ड में जो है लगता टाइम, वो सोचो। लेकिन मैं कहूंगा फिर भी जितना जल्दी कर लेते हो, जितना जल्दी इस फील्ड में आते हो, उतना अच्छा है, राइट। और जो लोग टारगेट कर रहे हैं कि मेरे को 1 साल बाद एग्जाम देना है, नेक्स्ट एग्जाम देना है, तो उनको मैं कहूंगा कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो और उनको क्लिनिकली कोरिलेट करो। और जो लोग आपकी तरह इंटर्नशिप कर रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि भैया इंटर्नशिप सीरियसली करना। इंटर्नशिप में पढ़ाई के चक्कर में इंटर्नशिप वेस्ट मत करना, इंटर्नशिप सीरियसली करो। आजकल क्लिनिकल क्वेश्चंस आते हैं 50-60 क्वेश्चन, तो सीधे अगर आपने इंटर्नशिप की हुई है अच्छे से तो वहीं से अटेम्प्ट कर पाओगे।
राइट। कितने स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जिन्होंने सीरियसली इंटर्नशिप की और साथ में पढ़ाई भी की और इस साल इन्होंने अच्छे से रैंक निकाली। तो इसलिए इंटर्नशिप सीरियसली करनी है, साथ में जितना टाइम मिले कॉन्सेप्ट्स बनाते रहो, बाकी टाइम पे आप जो है अपने सब्जेक्ट्स रिवाइज करते रहो और सब्जेक्ट कोई भी छोड़ना नहीं। अगर छोड़ रहे हो किसी सब्जेक्ट को तो एटलीस्ट उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको जरूर कवर करना है, चाहे नेक्स्ट दे रहे हो चाहे नीट दे रहे हो, राइट। बाकी आगे जैसे भी एक बार जब क्वेश्चन पेपर आ जाएंगे, फर्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा, तो हम और अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि भैया क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ये पैटर्न जो अभी तक मुझे समझ में आ रहा है, ये यूएसएमएल स्टाइल का पैटर्न बनाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट, ताकि एक स्टैंडर्ड मेडिको निकले बाहर और वो जो है अच्छे से मार्केट में आके और अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और या अपनी जो है नॉलेज शेयर कर सके या मरीजों का अच्छे से इलाज कर सके। इसलिए वो चाहते हैं क्लिनिकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तो क्लिनिकल कोरिलेशन जरूर करना किसी भी सब्जेक्ट को, खाली ड्रग ऑफ चॉइस पढ़ने से काम नहीं चलेगा कि भैया एंटेरिक फीवर ड्रग ऑफ चॉइस टाइफाइड फीवर, राइट, नहीं। तो ऐसे नहीं चलेगा कि सिर्फ ट्रैकजोन रट लिया और काम चल गया। तो आपको एंटेरिक फीवर के बारे में पूरा पढ़ना है। तो एंटेरिक फीवर लिया, उसकी पैथो पढ़ी, उसकी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी, उसकी फार्मा पढ़ी और मेडिसिन से उसका डायग्नोसिस पढ़ा। ये नॉलेज रखो, टॉपिक्स लिखते चलो, अपने नोट्स बनाते चलो, राइट। धीरे धीरे सभी लोग अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ही रहे हैं नेक्स्ट के हिसाब से। तो ये सारा मिला के एक अप्रोच करो और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव रहो, राइट। लाइफ में पॉजिटिव रहो, मोटिवेटेड रहो हमेशा, राइट, कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, राइट। हम इतने बुरे माइंड भी नहीं है, अगर मेडिकल लाइन में आए हैं तो टैलेंटेड लोग ही होंगे, राइट। मेडिकल में टैलेंटेड माइंड ही आते हैं इंडिया में, राइट। नहीं तो घर वाले ही बोल देते बेटा रहने दे, तू इस लायक नहीं है, राइट। चाहे लोग डॉक्टर्स की कितनी बुराई कर ले, लेकिन फिर भी जब अपने बच्चे का करियर बनाने की बात आती है तो बोलते टैलेंटेड है, डॉक्टर बन सकता है, राइट। इसमें नहीं है तू बेटा रहने दे, तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। तो ये सबको पता है कि ये मेहनत वाला फील्ड है, इसमें टैलेंटेड बच्चे ही आते हैं। तो सब में टैलेंट है, तुम सब कर सकते हो, हम सब कर सकते हैं। तो वो एक अप्रोच होनी चाहिए। तो पॉजिटिव और मोटिवेटेड रहना है हमेशा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक शुभम मैं अपनी तरफ से एडवाइस देना चाहूंगा कि जो है कि भैया एक चीज हमेशा याद रखो कि फेलियर जो है, अगर एक बार आप किसी चीज में फेलियर हो जाते हो, आपका टारगेट अचीव नहीं पाता है, तो उससे घबराना नहीं है। होता क्या है कि हम एक ही टारगेट बना के रखते हैं और वो नहीं मिले तो हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। हमेशा ऑप्शंस रखिए अपने पास 2-3 कि भैया ये फर्स्ट चॉइस, ये नहीं मिले तो सेकंड चॉइस, ये नहीं मिले तो थर्ड चॉइस। लाइफ में फर्स्ट चॉइस जरूरी नहीं है सबको मिले, क्योंकि हम इतने ज्यादा कंपटीशन है इंडिया में, 130 करोड़ से ऊपर लोग हैं हम, राइट। इतने सारे आपस में कंपटीशन है, तो जरूरी नहीं लाइफ में फर्स्ट चॉइस आपको मिले। हमेशा लाइफ में अल्टरनेटिव सोच के रखिए। तो होता क्या है कि फर्स्ट नहीं मिला, सेकंड मिल गया तो खुशी मिलती है, चल जो सोचा था वही मिल गया, राइट। तो वो चीज लाइफ में हमेशा जरूर रखनी है, ये हमेशा टारगेट रखना है। ये मेरी तरफ से एक सलाह है। और बताइए। ठीक है सर, तो फिर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस और बहुत अच्छा लगा। आई होप कि ये वीडियो काफी हेल्पफुल लोग पाए इसको और मैक्सिमम यूटिलाइज करें आपके गाइडेंस को। तो ठीक है, फिर यही खत्म करते हैं अब इसको। जी ठीक है शुभम, थैंक्स टू यू जिसने मुझे मौका दिया इस प्लेटफॉर्म पे आने का और अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का। होपफुली ये वीडियो आपका जो है काफी वायरल होएगा और बच्चे इस चीज को जो है एडवांटेज लेंगे। और उसके बाद अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आपने बता ही दिया कि मेरा फेसबुक पेज है, राइट, टेलीग्राम है, राइट। आप उसमें जो है ज्वाइन कर सकते हो और मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, राइट। अगर किसी को पर्सनल भी कोई बात होती है तो मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ, डायरेक्ट टच में रहता हूँ, राइट। तो इसलिए मैं बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली हूँ, ये तो आपको पता ही है। तो मैं स्टूडेंट्स के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, राइट। और आप भी करते रहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बेस्ट विशेष। थैंक यू सर। सो सर ठीक है, फिर लेट्स एंड इट। ओके शुभम, थैंक यू, नमस्कार।